packet flow when LAN users will communicate to internet. ओके, तो पैकेट फ्लो के बारे में बात करेंगे हम लोग. और जब ये हम लोग पैकेट फ्लो डिस्कस करेंगे, वी विल कवर लाइक HSRP, NAT, DHCP एंड DNS. ठीक है, ये सभी टेक्नोलॉजी इंक्लूड होगी जब हम लोग अभी पैकेट फ्लो डिस्कस करेंगे. व्हेन योर LAN यूजर विल कम्युनिकेट टू इंटरनेट. ओके, हमारा सिनेरियो लाइक इस तरह का है. फॉर एग्जांपल, देयर इज ए LAN यूजर connected with a switch and there are two default gateway, R1 and R2, and there is a edge router like and this edge router is connected to internet. With ISP. Okay, we will use network on, see for example this is our enterprise network. Okay, फॉर एग्जाम्पल हमारे नेटवर्क बुल्स का नेटवर्क है ये. ओके, and this is our edge router which is connected to internet. Okay, and there is a DNS server. For example, there is a IP address. We will create a loopback on ISP 8.8.8.8 and this loopback will be our DNS server. Okay, and we will create one more loopback on ISP router. For example, 1.1.1.1, and this is our web server. For example, www.google.com. okay, and we will use IP address on this segment 192.168.1.0/24. okay, on this interface we will use 192.168.1.1, 192.168.1.2. okay, okay, now these LAN users are having two default gateways. okay, on this segment we will use IP address 192.168.10.0/24, and on this segment we will use 192.168.20.0/24 network. okay, on this interface we will use IP address 10.1, 192.168.10.1, 192.168.20.1, 10.2 and 20.2. okay, and on this interface there will be a public IP address. For example, we will use 15.1.1.1 on edge router. On ISP end we will use 15.1.1.2. okay, your ISP will provide a public IP address to your edge router. okay, so if this user want to communicate to the internet to www.google.com, this user required a private IP address in the network of 192.168.1.0/24, default gateway also, and IP address of DNS server, because by default your LAN user can communicate to the internet with using IP address only.
But if you want to communicate to the internet with using name, then we required a DNS server. DNS server. So we will assume that there is a DNS server on ISP router, and this IP address will become preferred DNS server for these LAN users. पता है ना ये सारी चीजें, थोड़ा बहुत बेसिक DNS तो पढ़ के आए हो ना? अरे बेसिक DNS तो पढ़ाया होगा तुम लोगों को. Fine. Okay. So these LAN users are required a IP address. So who will provide the IP address? DHCP server. So what we will do, we will configure this router as a DHCP server. This router also will act as a DHCP server. Now we are having two DHCP server in our network, okay? And we will provide, for example, this DHCP server is providing IP address to this client user, to this client 192.168. For example, it's 1.10. So what will be the default gateway? Default gateway will be what? Right now we are having two default gateways, this IP address and this IP address. So which IP address you will use as a default gateway for these LAN users? Now what you will do, we can use 192.168.1.1 as a default gateway for these LAN user. But what will happen when this router will goes down? Now these LAN user cannot communicate to the internet. So what we will do, we will aggregate these default gateway into a single virtual default gateway. So our virtual default gateway will be like this 192.168.1.100, and this IP address will become default gateway for these LAN users. Okay, so IP address will be here like 192.168.1.10, and default gateway will be 192.168.1.100. And what will be the DNS server IP? It will be 8.8.8.8. Okay, DNS server का IP देना पड़ेगा ना? We will communicate to this loopback with using name www.google.com. So we required a DNS server, and DNS server is on ISP router. Okay, so we will provide that loopback interface as a DNS server IP address to these LAN users. And who will provide this IP configuration? Who will provide this IP configuration? DHCP server. Now we are having two DHCP server. दो DHCP server रखने पड़ेंगे ना? क्यों रखने पड़ेंगे? Redundancy के लिए. अगर ये router down हो गया, then this router will provide dynamic IP address to these client users. Okay, so ये हमारी topology रहेगी. To aggregate these this physical default gateway into a logical default gateway, we will use HSRP protocol. Okay, and on this as router, we always configure a default route pointing toward ISP. Okay, now what happens on this ISP interface? Only single IP address will be permitted. Which IP address? That public IP address 15.1.1.1 will be permitted, and by default all remaining IP will implicit deny. ऐसे ही होता है ना नॉर्मली. ISP राउटर पे यहाँ पे क्या लगी होती हैं? एशियन. चलो इसको स्टार्ट करने से पहले मुझे थोड़ा प्राइवेट IP और पब्लिक IP एड्रेस में डिफरेंस बताएंगे आप लोग? What is the difference between private IP and public IP address? Private IP address आप अपना घर में यूज करते हैं. Okay, we can use private IP address in our local area network in LAN. We will use public IP address in wide area network, or you can say in WAN. And all website works on public IP address. एक और एक और छोटा सा डिफरेंस है.
पब्लिक आईपी एड्रेस ठीक है, पेड है। प्राइवेट आईपी देखो यार, हमारा जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, हमारे लोकल एरिया नेटवर्क में हम लोग कौन से आईपी एड्रेसेस यूज करते हैं? प्राइवेट आईपी एड्रेसेस यूज करते हैं। और आप प्राइवेट आईपी एड्रेस से इंटरनेट से कम्युनिकेट कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते? क्या रीजन होता है उसका? चलो पहले वो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, फिर इसके ऊपर आता हूँ मैं, ठीक है? देखो नॉर्मली होता क्या है यार, फॉर एग्जाम्पल these LAN users are connected with a switch and we are using a private network, and this switch is connected with a router and router is connected with a ISP, a service provider. Okay, what happens, your service provider will provide a IP address on this interface, for example 15.1.1.1, and on this interface there will be a ACL, a standard ACL. Only single IP will be permitted, 15.1.1.1 will be permitted, and by default all remaining IP will be implicit denied. Now what happens, why you cannot communicate to the internet with using private IP address? See, we always configure a default route toward ISP, and for example there is a IP address 10.1.1.1, and on this interface IP address is what? 10.1.1.100. This LAN user want to communicate to the internet, so it will encapsulate a packet. Source IP will be what? 10.1.1.1, and you are going to communicate to 8.8.8. so this IP address will be destination IP address on layer 2. Source MAC address will be what? MAC address of LAN user, and destination MAC address will be what? MAC address of default gateway. पैकेट इस राउटर के पास में आएगा. नाउ राउटर विल ओपन दिस layer 2 header. It will check that what is destination MAC address. Destination MAC address is its own MAC address, so it will accept that frame on layer 2. After that, this router will open this layer 3 header, and it will check that what is your destination, what is destination IP address in this packet. Destination IP address is 8.8.8.8. So to forward traffic toward 8.8.8.8, router will look up its routing table. Routing table look up करेगा, और routing table में क्या पड़ा होगा? एक default route पड़ा होगा ना. पैकेट किसकी तरफ भेज देगा? Toward ISP. When ISP will receive this packet on this interface, ISP will check that what is source IP address. See, there is a ACL, and which ACL? Standard ACL will be there. Okay, so it will check that what is source IP address. Source IP address is 10.1.1.1, and on this interface only single IP is permitted, that is 15.1.1.1. तो ये इस पैकेट को यहीं पे क्या कर देता है? नॉर्मली ड्रॉप कर देता है. आप लोग इंटरनेट से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो. आईएसपी को नहीं पता प्राइवेट आईपी कौन से होता है, पब्लिक आईपी कौन से होता है. राउटर्स को थोड़ा ना पता होता है प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन. ये पहले से डिफाइन करा हुआ है किसने? ये प्री डिफाइंड है बाय आईना. ठीक है, राउटर्स को नहीं पता होता अगर मैं कोई आईपी कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, लाइक ये मेरा प्राइवेट आईपी है या पब्लिक आईपी है. सो यू कैन नॉट कम्युनिकेट टू द इंटरनेट फ्रॉम योर प्राइवेट नेटवर्क, because on this interface only a single public IP address will be permitted. जो कौन ISP आपको क्या करेगा? इस इंटरफेस पे क्या करेगा? प्रोवाइड करवाएगा. सिर्फ वही IP क्या हो सकता है? परमिट हो सकता है ना. तो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो आप नॉर्मली. और एक और चीज, यू कैन नॉट कम्युनिकेट दिस LAN नेटवर्क फ्रॉम इंटरनेट. इंटरनेट से भी इस LAN नेटवर्क को आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते. क्यों नहीं कम्युनिकेट कर सकते? फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए सर्वर, IP address is what? 8.8.8.8, and you want to communicate to this LAN user 10.1.1.1. This LAN user will encapsulate a packet, and source IP address will be what? 8.8.8.8, and destination IP address will be what? 10.1.1.1. Your packet will come to ISP router, and ISP router will check that what is source IP address. Source IP address is 8.8.8.8, and this IP address will be permitted on this interface. After that,
ISP router will look up the, after that ISP router will check that what is destination IP. Destination IP address is 10.1.1.1. Now ISP router will look up its routing table, और ISP की routing table में कोई प्राइवेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन नहीं होती है. ISP की routing table में सिर्फ पब्लिक नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन होती है. हम लोग नॉर्मली बोलते हैं ना, जो पब्लिक आईपी एड्रेस होते हैं वो क्या होते हैं, राउटेबल. क्या होते हैं, राउटेबल. क्यों बोलते हैं उनको राउटेबल? बिकॉज आईएसपी की राउटिंग टेबल में क्या होते हैं, पब्लिक नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन पहले से ही वहां पे प्रेजेंट होती है. और प्राइवेट आईपी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनराउटेबल. अनराउटेबल क्यों बोलते हैं? आईएसपी के राउटिंग टेबल में प्राइवेट नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन नहीं होती है, और ना ही आईएसपी की राउटिंग टेबल में आपको डिफॉल्ट रूट देखने को मिलेगा. देयर विल बी नो डिफॉल्ट रूट ऑन आईएसपी राउटर्स. तो पैकेट क्या होगा फिर, वो 10.1.1.1 की नेटवर्क की कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, और ना ही उस आईएसपी की राउटिंग टेबल में डिफॉल्ट रूट प्रेजेंट होगा कोई, तो पैकेट क्या हो जाएगा, तो यही रीजन है कि आप आउटसाइड नेटवर्क से आप प्राइवेट नेटवर्क को कम्युनिकेट नहीं कर सकते. समझ में आई बात? तो हम लोग यहाँ पे इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकालेंगे. इफ यू वांट टू कम्युनिकेट फ्रॉम योर प्राइवेट नेटवर्क टू इंटरनेट. लेकिन सर जब हम कहते हैं कि हमारा जो स्टैटिक नेट है वो बाई डायरेक्शनल होता है, तो उससे सिर्फ हम बाहर से कम्युनिकेट करते हैं. हाँ, आएंगे उसके ऊपर. एक्चुअली आप पब्लिक आईपी को हिट कर रहे होते हो, आएंगे उसके ऊपर. मैं नेट आपको बताऊंगा इसके अंदर, आज की क्लास में नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आपको क्लियर हो जाएगा. वो नेट आएगा इस राउटर पे. डायनामिक नेट भी डिस्कस करेंगे एंड स्टैटिक नेट भी डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था आपका प्राइवेट आईपी में और पब्लिक आईपी एड्रेस में. क्या डिफरेंस होता है? यू कैन नॉट कम्युनिकेट फ्रॉम योर प्राइवेट नेटवर्क टू योर आउटसाइड नेटवर्क, मीन्स टू द इंटरनेट. और यू कैन नॉट कम्युनिकेट फ्रॉम योर आउटसाइड नेटवर्क टू योर इनसाइड नेटवर्क, मीन्स योर प्राइवेट नेटवर्क. सॉल्यूशन भी निकालेंगे, कम्युनिकेट भी कर पाएंगे, उसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशन आएंगे, बात करेंगे हम लोग उनके बारे में. ठीक है. जीआरई वगैरह आएंगे, नेट वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग. ठीक है. सो मैं वापिस इसी टोपोलॉजी में आ रहा हूं. इस इंटरफेस पे एक सिंगल आईपी परमिट होगा, दैट इज 15.1.1.1. ओके. सो व्हाट वी विल डू, वी विल कॉन्फ़िगर नेट सर्विस ऑन दिस एज राउटर. कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ना नेट, अदरवाइज यू कैन नॉट कम्युनिकेट टू द इंटरनेट. और नेट का टाइप भी कौन सा कॉन्फ़िगर करते हैं हम लोग, पैट. तो यहां पे हम लोग पैकेट फ्लो डिस्कस करने वाले हैं ये. ठीक है. तो पहले मैं ये टोपोलॉजी डिजाइन कर लेता हूं, देन इसके बारे में डिस्कस करेंगे पैकेट फ्लो क्या रहेगा. और मैं यहां पे अभी एचएसआरपी डिस्कस नहीं करने वाला हूं. एचएसआरपी डिस्कस नहीं करेंगे, एचएसआरपी कैसे वर्क करता है. ठीक है. एचएसआरपी आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो, एचएसआरपी, वीआरआरपी एंड जीएलबीपी. मैं रिवाइज नहीं करने वाला हूं. अगर रिवाइज करना है तो मैं कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर टॉपिक मिस हो जाएंगे तुम्हारे. ठीक है. पढ़ के आए हो ना ऑलरेडी. तो जो टॉपिक तुम्हारे नहीं कवर हुए थे वहां पे, वो हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे. ओके. तो मैं ये टोपोलॉजी पहले डिजाइन कर लेता हूं जीएनएस में, देन इस पैकेट फ्लो के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या पैकेट फ्लो रहेगा. R1, R2, this is our edge router. Okay. And this is ISP router. हाँ, क्या हुआ? पानी पी क्या रहा है? उसको बोलना पानी भेज देगा साथ में क्लास में भी. सिंबल चेंज कर रहा हूं. दिस इज आवर ISP राउटर एंड चेंज होस्ट नेम ISP. There is a switch, and behind this switch there is some LAN users.
अच्छा, आपको अपने लैपटॉप को जीएनएस से कनेक्ट करना आता है ना? देखो यार, अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये जो लैन यूजर है ना, ये एक्चुअली मेरा लैपटॉप है। मैं जो ये केबल यहाँ पे कनेक्ट करने जा रहा हूँ ना, वो कहाँ पे कनेक्ट होगी? मेरे लैपटॉप पे ये 2 लैन कार्ड है। ये वो लैन कार्ड आपको शो कर रहा है। कोई भी आप लैन कार्ड पे क्या कर सकते हैं, वो केबल कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस डेस्कटॉप को ओपन करता हूँ। आई एम गोइंग टू कनेक्ट वायरलेस लैन कार्ड। मैंने वायरलेस लैन कार्ड एक ऐड किया है, तो अब यहाँ पे एक ही लैन कार्ड दिखाएगा, दैट इज दिस वायरलेस लैन कार्ड। ओके, सो मेरा लैपटॉप जो है वो किससे कनेक्ट हो चुका है? इस स्विच से कनेक्ट हो चुका है। नाउ दिस लैपटॉप कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट टू द जीएनएस। जीएनएस से कनेक्ट हो चुका है मेरा लैपटॉप अभी फिलहाल। ओके, एंड वी विल कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस ऑन विच लैन कार्ड? ऑन दैट वायरलेस लैन कार्ड। वाईफाई लैन कार्ड के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, एंड दैट वायरलेस लैन कार्ड इज कनेक्टेड टू द स्विच। मैंने अपना लैपटॉप कनेक्ट कर लिया वायरलेस से, सॉरी इस जीएनएस से। ठीक है, और एक और काम कर लेते हैं। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं एक काम करूंगा यहाँ पे, मैं एक और राउटर यूज कर लेता हूँ, एंड दिस राउटर विल एक्ट एज ए होस्ट। सो आई एम गोइंग टू चेंज द सिंबल। होस्ट नेम इज host1. So this is our enterprise network. ये किसका नेटवर्क है? नेटवर्क बुल्स। और हमने आईएसपी से क्या ले रखा है? एक इंटरनेट लाइन ले रखी है। ठीक है, आईपी एड्रेसेस पता ही है क्या यूज करने हमने। On this segment we will use 192.168.1.0/24. On this segment we will use 192.168.10.0/24. So on this interface we will use 10.1 and 10.2 on this interface. Okay, on this interface 192.168.20.0/24. So 20.1 will be on this interface, 20.2 on this interface, and on these interfaces we will use 15.1.1.0/30. बोल दिया भाई. And we will create a loopback on this ISP router 8.8.8, and this 8.8.8 will be our DNS server, and we will use one more loopback, that is 1.1.1, and this will be, let's suppose 1.1.1 is google.com, www.google.com. okay, so first of all I am going to configure IP addresses. An ISP router and this host. So first of all I am going to configure R1 interface Ethernet 1/1. IP address is 192.168.1.1. say no, shut down.
exit interface Ethernet on 1/0. I'm using 192.168.10.1. IP address हो गया कॉन्फ़िगर on R2. Interface Ethernet 1/1. IP address will be 192.168.1.2. Channel shutdown. Exit interface Ethernet 1/0. IP address will be 192.168.20.1. Channel shut. Okay. Now on edge router, interface Ethernet on 2/0, 192.168.10.2. Channel shut. Interface Ethernet 2/1. It will be 20.2. Channel shutdown. And on serial 1/0 IP address will be it's a 15.1.1.1. Okay. Now on ISP router, interface serial 1/0, 15.1.1.2, 255.255.255.252. Channel shutdown. And I'm going to create a loop back that is 1.1.1.1, 255, 255, 255.0. and मैं डिस्क्रिप्शन भी दे रहा हूँ www. मान लेते हैं मेरा google.com है. Okay. And one more thing, we will create one more loop back that is 8.8.8.8. and I'm saying description, this is our DNS server. So IP interface brief. Okay. ये IP address की configuration होगी. Now we will use EIGRP protocol in our enterprise network on all the routers. So on R1 router EIGRP 100, no auto summary, network is 0000. All the interface will be advertised into EIGRP. अब network 000 कमांड का क्या मतलब है पता है ना सभी को? Okay. On R2 as well, router EIGRP 100 say no auto summary, network is 000. All the interfaces will be advertised into EIGRP. On edge router also I am going to configure EIGRP protocol. Router EIGRP 100 say no auto summary, network is 000. And one more thing, we always configure these LAN interfaces as a passive interface. पता है ना? इन LAN users को कोई EIGRP के messages की EIGRP messages required नहीं है इनके लिए. So we always configure our LAN interface as a passive interface. तो मैं passive interface बना रहा हूँ इनको. Router EIGRP 100 से passive interface is Ethernet 1/1. On R2 as well, configure router EIGRP 100 से passive interface is Ethernet 1/1. Now these two router will become neighbor of edge router, है ना? edge router पे दो neighborship दिखाएगा, show IP EIGRP neighbor. And we always configure a default route toward ISP router. तो मैं edge router पे क्या करूँगा? So IP, we have configured a default route toward ISP. Okay, इतना काम हो गया. Now these LAN users are also required IP addresses, right? So what we will do, we will configure these R1 and R2 as a DHCP server. So मैं इन दोनों को as a DHCP server configure करने जा रहा हूँ. So these router will provide IP address, will provide automatically IP address to these LAN users. So first of all on R1, I'm saying IP DHCP pool
NB network. It's 192.168.1.0/24, and it will provide default gateway also. So default gateway will be what? See, we will aggregate these physical default gateway into a virtual default gateway, and that virtual default gateway will be 192.168.1.100. This is our virtual default gateway. So when R1 will provide a IP address, when R1 will provide dynamic IP address, it will also provide a default gateway. So default gateway will be 100. Okay, and one more thing, these LAN user can communicate to the internet with using IP address only. If you want to communicate from these LAN user to the internet with using name, then these LAN user will be required a DNS server also. So what we will do, it will provide DNS server also. DNS server IP address is what? 8.8.8.8. ओके, एक और चीज, इस DHCP के पूल में नंबर ऑफ IP एड्रेसेस कौन से हैं? 1 to 254 पूल को, हाँ वो हमने IP यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे? एक्सक्लूड करवाना पड़ेंगे ना, अदरवाइज अगर इसने 1.1 प्रोवाइड करवा दिया वो IP यहाँ पे मिला हुआ है, 1.2 प्रोवाइड करवा दिया वो यहाँ पे मिला हुआ है, 1.100 प्रोवाइड करवा दिया वो हमारा वर्चुअल IP है. सो वी विल एक्सक्लूड these IP addresses. So IP DHCP से excluded address 192.168.1.1, 1.2 and 1.100. Now this DHCP server will never provide these IP addresses. Okay? ये DHCP सर्वर क्या करेगा? IP प्रोवाइड करवाएगा. अब ये DHCP सर्वर डाउन हो गया, फिर उनको IP कौन प्रोवाइड करवाएगा? So we are having two gateway. So I will configure this R2 as a DHCP server. इसको भी हम लोग DHCP सर्वर वर्क करवाएंगे. ठीक है, रिडंडेंसी के लिए, लोड बैलेंसिंग के लिए. ओके, अगर एक DHCP सर्वर डाउन हो जाए तो दूसरा DHCP सर्वर क्या करता रहेगा? आपको डायनेमिकली IP एड्रेस प्रोवाइड करवाता रहेगा. फाइन. सो ऑन R2 एज वेल IP DHCP pool name is NB, network is what? 192.168.1.0/24, and default router 192.168.1.100, and DNS server will be 8.8.8.8, and IP DHCP excluded address is 192.168.1.1, 1.2 and 1.100. ये IP एड्रेस हमने क्या कर दिया? एक्सक्लूड करवा दिया. फाइन. बट कई बार क्या होता है, अभी पैकेट फ्लो पे आया नहीं हूं मैं, पहले हम लोग ये पूरी टोपोलॉजी डिजाइन कर लेते हैं. हमारे यहाँ पे मेन कंसर्न रहेगा किस पे? पैकेट फ्लो के ऊपर. समझ में आ रही है ना बात? नाउ वी आर हैविंग टू DHCP सर्वर एंड पुल इज 192.168.1.0/24. नंबर ऑफ IP एड्रेस कितने हैं यहाँ पे? 1 to 254, and on this DHCP server also 1 to 254. अब क्या हो सकता है? Who will now who will provide the IP address to these client users? This DHCP server or this DHCP server? इन दोनों में से कौन सा DHCP server IP प्रोवाइड करवाएगा LAN users को? When these LAN user will generate a discover message, your discover message will received by both DHCP server. But who will provide the IP address? देखो, इन दोनों में से जो इसको पहले ऑफर देगा, जो भी इन दोनों में से पहले इसको ऑफर देगा, ये उसी के लिए क्या करेगा? उसी IP के लिए रिक्वेस्ट करेगा, तो उसी DHCP सर्वर से IP मिलेगा. समझ में आ रही है बात? नॉर्मली होता क्या है, ऑफर तो दोनों देंगे ना. ये क्या भेजेगा? डिस्कवर मैसेज आएगा DHCP सर्वर के पास में. नाउ
This is our discover message. Now both DHCP server will give offer. और अब ये किस ऑफर के लिए रिक्वेस्ट करेगा? जो पहले रिसीव होगा, जो पहले ऑफर रिसीव हुआ है उसी ऑफर के लिए क्या करेगा? ये रिक्वेस्ट करेगा. तो पहले अगर R1 ने ऑफर दिया तो इससे आईपी मिल जाएगा, पहले अगर R2 ने ऑफर दिया तो उससे आईपी मिल जाएगा. इतनी चीज क्लियर है? अब ऐसा भी तो हो सकता है, this DHCP server providing IP address 192.168.1. for example 10 9 तक IP प्रोवाइड करवा दिए थे और फर्स्ट IP will be what? DHCP server is going to provide IP address 192.168.1.3. कौन सा IP यहाँ पे फ्री पड़ा है? यही IP है ना, 1.3 है ना, वही इसको क्या कर देगा? प्रोवाइड करवा देगा. अब हो सकता है ना ये भी IP के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं और इसको ऑफर कौन पहले दे रहा है? ये वाला DHCP. तो इस पे भी तो फ्री IP कौन से पड़े हैं? 1.1 and 1.2 IP addresses excluded, so it will provide 1.3. तो अब क्या हो सकता है? IP एड्रेस यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ना. IP एड्रेस क्या हो सकता है? कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? इवन ग्रेसिस आर भी जनरेट होता है ना. बिफोर प्रोवाइडिंग ए IP एड्रेस DHCP सर्वर विल जनरेट ए ग्रेसिस आर, उस IP को चेक करने के लिए करता है ना. ऐसा भी तो हो सकता है. यहाँ पे एक और स्विच कनेक्टेड है, ठीक है, और इसने इसको एक आईपी प्रोवाइड करवा दिया था 192.168.1. फॉर एग्जाम्पल देयर इज, ये जो लैन यूजर है वो इस स्विच के साथ में इस तरह से कनेक्टेड है. इन दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है. यहाँ पे एक और स्विच था इस तरह से कनेक्टेड है. इस DHCP सर्वर ने इसको क्या कर दिया था? एक आईपी प्रोवाइड करवा दिया था. क्या? 192.168.1.3 आईपी मिल गया इसको और इस DHCP सर्वर से मिला था. और ये लिंक उसके बाद में क्या चला गया? डाउन चला गया. इसको आईपी क्या मिल चुका है? 1.3 मिल चुका है. Now this LAN user want to get a IP address from DHCP server, so it will generate a discover message. ये भी अपना डिस्कवर मैसेज भेजेगा और इन दोनों DHCP सर्वर को क्या हो जाएगा? रिसीव हो जाएगा. लेट्स सपोज इस बार पहले ऑफर कौन दे रहा है? ये दे रहा है. और ये भी कौन सा देगा? 1.3. तो ये पहले क्या जनरेट करेगा? ग्रेसिस आर्प जनरेट करेगा और ग्रेसिस आर्प का रिप्लाई मिलेगा क्योंकि ये लिंक तो क्या हो गया? डाउन हो गया. इसको आईपी एड्रेस ऑलरेडी मिला हुआ है तो इसको आईपी प्रोवाइड करवा दिया क्या? 1.3. और उसके बाद में ये लिंक क्या हो गया? अप आ गया. तो वो आईपी एड्रेस वहां पे क्या हो सकते हैं? कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं ना. प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है ना प्रॉब्लम. अगर मेरे पास में रिडंडेंट DHCP सर्वर है, बैकअप DHCP सर्वर है, उस केस में प्रॉब्लम आ सकते हैं. यहाँ पे नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं आएगी. ये आईपी प्रोवाइड क्या करवा रहा है? 1.3. ये 1.3 आईपी प्रोवाइड करवाने से पहले क्या जनरेट करता है? ग्रेसिस आर्प. अगर रिप्लाई आ जाती है तो सेम आईपी नहीं प्रोवाइड करवाएगा. इट विल प्रोवाइड 1.4. सो आईपी एड्रेस विल नॉट कॉन्फ्लिक्ट. बट अगर इसकी रीचेबिलिटी हट गई तो फिर प्रॉब्लम है ना. तो ट्राई करो. वी कैन डू वन थिंग. वी कैन एक्सक्लूड फ्रॉम 1 to 100 IP और वी कैन एक्सक्लूड 1 to 124 IP एड्रेस. इतने ही बनते हैं क्या? नहीं. 125 IP एड्रेस on this DHCP server. We will exclude these IP addresses and we will exclude from 106 to 254 IP addresses on this DHCP server from this pool. Now what will happen? This DHCP server will provide IP address from 1 to 125. It will exclude .1, .2, .100 and it will provide from 103 to 125. अरे ये तो हमने यहाँ पे क्या करवा दिए? एक्सक्लूड करवा दिया ना. ये आईपी तो कभी प्रोवाइड करवाएगा नहीं है. और ये कौन सी नहीं प्रोवाइड करवाएगा? 1 to 125. तो ये जो प्रोवाइड करवाने वाला है 1 to 125 प्रोवाइड करवाने वाला है. और ये जब भी प्रोवाइड करवाएगा 126 to 254 प्रोवाइड करवाएगा. तो अभी कभी आईपी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना.
तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे पास में बैकअप DHCP सर्वर है, रिडंडेंट DHCP सर्वर है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, पूल में से आईपी एड्रेसेस डिवाइड करके क्या कर देंगे, एक्सक्लूड करवा देंगे, ताकि वो आईपी कॉन्फ्लिक्ट ना हो. नाउ when this LAN user will provide IP address 192.168.1.3 to this LAN user, and this DHCP server want to provide a IP address to this LAN user, it will provide what, 192.168.1.126 from 126 to 254. Now IP address will not conflict, है ना. तो हमेशा जब भी DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं ऐसे ही कॉन्फ़िगर करेंगे हम लोग. क्लियर है ये चीज. तो एक्सक्लूड करवा दूं ये IP एड्रेसेस. सो ऑन R1 व्हाट वी विल डू, IP DHCP excluded address 192.168.1.1 192.168.1.125. नो, इसने तो ये प्रोवाइड करवाने थे. IP DHCP excluded 192.168.1.126 to 254. Okay. We have excluded which IP addresses? These IP addresses, okay? And on R2, IP DHCP excluded address from 192.168.1.1 to 192.168.1.125. DHCP server हो गया कॉन्फ़िगर. Now what we will do? Now we will configure HSRP. We will aggregate these physical gateway into a virtual gateway. So I am going to configure HSRP on these interfaces. So on R1 HSRP configure करना आता है ना. Interface Ethernet on 1 by 1. Say stand by. Then group number. अगर मैं ग्रुप नंबर डिफाइन नहीं करूंगा तो क्या होगा, अगर मैं ग्रुप नंबर डिफाइन नहीं करता तो क्या होगा, ग्रुप नंबर देना पड़ता है ना. ग्रुप नंबर 1, देन IP, वो वर्चुअल IP. अगर मैं ग्रुप नंबर डिफाइन नहीं करूंगा तो क्या होगा, ये ग्रुप 0 उठा लेगा. ये ग्रुप क्या ले लेगा, ग्रुप 0. पता है ना. एंटर करूं, ठीक है. ऑन R2 इंटरफेस ईथरनेट 1 by 1 स्टैंड बाय. मैं ग्रुप नंबर डिफाइन नहीं कर रहा हूं. IP विल बी 192.168.1.100. अगर मैं यहां पे IP ना दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या, IP तो देना पड़ता है हमने. ग्रुप तो सेम है, ग्रुप 0 है, तो ऑटोमेटिकली वो IP क्या कर लेता है, सामने वाला लिसन कर लेता है. देने की जरूरत नहीं है, दे सकते हो, ठीक है. 192.168.1.100. वी ऑलवेज यूज सेम IP एड्रेस ऑन ऑल द इंटरफेसेस, ऑन ऑल डिफॉल्ट, ऑन ऑल फिजिकल डिफॉल्ट गेटवे. बट अगर मैं एक को डिफाइन कर देता हूं, दूसरे को डिफाइन नहीं करूंगा ना, तो वो उसी से क्या कर लेगा, वो लिसन कर लेगा. देखो मैं दे नहीं रहा हूं. नाउ आई एम गोइंग टू चेक ऑन R1. शो स्टैंड बाय ब्रीफ. शो स्टैंड बाय ब्रीफ में दिखा देगा दिस राउटर इज एक्टिव एंड ग्रुप नंबर इज 0. ग्रुप नंबर मैंने मेंशन नहीं किया था HSRP के लिए, तो ग्रुप नंबर 0 यूज कर लेता है. और मैं यहां पे HSRP नहीं पढ़ाने वाला हूं. HSRP तुम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हो, ठीक है. ऑन R2 शो IP, सॉरी, शो स्टैंड बाय ब्रीफ. देखना ये स्टैंड बाय है, ग्रुप नंबर इज 0. मैंने ग्रुप नंबर मेंशन नहीं किया था यहां पे, है ना. और ये देखना इसने ऑटोमेटिकली वर्चुअल IP लिसन कर लिया. ये एक राउटर पे दे देते हो, बाकी राउटर्स क्या कर लेंगे, ऑटोमेटिकली उसको लिसन कर लेंगे, ठीक है. तो ये राउटर एक्टिव कौन बने, R1. स्टैंड बाय कौन बने,
R2। इतनी बात समझ में आ गई? ओके। अब एक और चीज, अब पता कैसे आर रिस्पॉन्स कौन देगा इन दोनों में से? एक्टिव राउटर विल गिव द आर्प रिस्पॉन्स। और आर्प रिस्पॉन्स कैसे पता चलेगा कि एक्टिव कौन है, आर्प रिस्पॉन्स कौन देगा? शो आर्प, जब आप कमांड चलाते हो ना, आर्प टेबल चेक करते हो, तो यहां पे क्या होगी, एक एंट्री बन जाएगी आर्प टेबल में। और ये एंट्री किस राउटर पे बनेगी? एक्टिव राउटर पे बनेगी, स्टैंड बाय राउटर पे नहीं बनेगी। ये देखो 100 आईपी मिला ना इसको, एंड वर्चुअल आईपी विल बी व्हाट? यहां तक तो सेम रहेगा, और लास्ट 2 डिजिट में क्या रहेगा? ग्रुप नंबर। ये फिक्स्ड है, और लास्ट 2 डिजिट में क्या आता है? ग्रुप नंबर। तो इस वर्चुअल आईपी का एक वर्चुअल मैक एड्रेस भी वो कैलकुलेट करता है अपना, है ना? और ये एंट्री आपको यहां पे नहीं मिलेगी R2 पे। शो आर्प, यहां पे एंट्री है क्या? तो आर्प रिस्पॉन्स कौन देगा? जिसकी एआरपी टेबल में एंट्री पड़ी होगी वही क्या करेगा? आर्प रिस्पॉन्स देगा। समझ में आ रही है बात? एंड व्हेन दिस राउटर विल गोज डाउन, वो एंट्री आर्प टेबल में इसकी आ जाएगी एक्टिव होते ही। और अब ये आर्प रिस्पॉन्स प्रोवाइड करवाना क्या कर देगा? स्टार्ट करवा देगा। समझ में आ रही है बात? हाँ जी, आप बोलो क्या पूछ रहे थे? हाँ, दिस मैक एड्रेस इज फिक्स्ड, यहां तक फिक्स्ड है, और यहां पे ग्रुप नंबर। इफ यू आर यूजिंग ग्रुप नंबर 10, देन नंबर विल बी व्हाट? मैक एड्रेस विल बी 0A। हेक्साडेसिमल है ना? 0A। समझ में आ रही है बात? नाउ सी, HSRP is configured and R1 is active router. So who will give the ARP reply? R1 router. Okay. When this LAN user want to communicate to the internet, your traffic will come to R1. See, you want to communicate, for example, I am going to, first of all, I am going to provide a IP address to this host. So what I will say no IP routing, interface Ethernet 1/0, say no shutdown, say IP address DHCP। तो देखते हैं किससे IP मिलता है इसको। वेट करो, इसको IP मिल चुका है, और किससे मिला इसको IP? अब कैसे पता चलेगा कौन से DHCP सर्वर से IP मिला है? R1 पे चेक करें। शो IP कैसे चेक करोगे? DHCP बाइंडिंग में दिखाएगा। इसने कोई IP प्रोवाइड नहीं करवाया फिलहाल। एक काम करते हैं, R2 पे चलो। शो IP DHCP बाइंडिंग में ये दिखाएगा। एक IP एड्रेस प्रोवाइड करवाया इसने क्या? और कब IP एक्सपायर हो जाएगा? और टाइप क्या दिखा रहा है? तो ऑटोमेटिकली IP प्रोवाइड करवा रहा है, उस टाइम पे IP क्या हो जाएगा? वो एक्सपायर हो जाएगा। लीज एक्सपायर 24 आवर के लिए IP प्रोवाइड करवाया। और क्या IP प्रोवाइड करवाया? ये IP प्रोवाइड, ये किसको प्रोवाइड करवा रहा है? आई थिंक मेरे लैन इस मशीन को। इसने 2 IP प्रोवाइड करवाए ना, एक ये भी तो IP प्रोवाइड करवाया 126। सो R1 पे भी थी क्या? इसने इसको नहीं प्रोवाइड करवाया। तो पहले उसने वो कोई और IP कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा स्टार्टिंग में। ओके, ये देखो, अब ये DHCP सर्वर नेक्स्ट IP एड्रेस कौन सा प्रोवाइड करवाएगा? कैसे चेक करोगे? शो IP DHCP पूल में दिखाएगा। यहां पे करंट इंडेक्स में जो IP एड्रेस दिखा रहा है ना, वही नेक्स्ट IP एड्रेस क्या करेगा? प्रोवाइड करवाएगा। और IP प्रोवाइड कौन कौन से IP एड्रेस प्रोवाइड करवा दिए हैं कैसे चेक करोगे? शो IP DHCP बाइंडिंग से पता चल जाएगा। तो इसको देखें क्या क्या IP मिले हैं, क्या IP मिला है होस्ट 1 को। शो IP DHCP, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। (127)
show IP route. What is default gateway? 192.168.1.100 is डिफॉल्ट गेटवे. ठीक है, आईपी एड्रेस असाइन हो गया. डीएनएस सर्वर का भी आईपी मिल चुका होगा इसको. एक मिनट. तो हमने यहाँ पे क्या क्या कॉन्फ़िगर कर लिया? HSRP कॉन्फ़िगर हो गया, वर्चुअल डिफॉल्ट गेटवे बन गया ये हमारा. ठीक है, एंड वी हैव कॉन्फ़िगर्ड DHCP सर्वर एज वेल, एंड दीज LAN यूजर्स आर रिसीविंग IP एड्रेसेस फ्रॉम दिस DHCP सर्वर. ओके, एंड डिफॉल्ट गेटवे ऑल्सो. DNS सर्वर का भी IP मिल रहा है. फाइन. नाउ सी, these LAN user want to communicate to the internet. Now what will happen? For example, this LAN user wants to communicate to the internet, so it will encapsulate a packet. For example, its source IP address is what? 1.10. Destination IP address is what? It want to communicate to 1.1.1.1. What will be the source MAC address? LAN user MAC address, its own MAC address, and destination MAC address will be what? Virtual MAC address of this MAC address of this IP address, है ना. तो उसका MAC address क्या था? वो 00 था ना एंड में, वो MAC address रहेगा. ये फ्रेम आएगा स्विच के पास में, स्विच इसकी एक कॉपी कहाँ पे भेज देगा? इस राउटर की तरफ. और वो वर्चुअल आईपी और वर्चुअल गेटवे, वर्चुअल मैक एड्रेस कहाँ पे एक्टिव है? यहीं पे एक्टिव है ना. सो दिस राउटर विल ओपन दिस लेयर 2 हेडर एंड इट विल चेक दैट व्हाट इज डेस्टिनेशन मैक एड्रेस. डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज इट्स ओन मैक एड्रेस, राइट. इसकी ARP टेबल में पड़ा होगा ना, वो इसी का मैक एड्रेस था ना वो. तो इसको क्या कर लेगा? वो एक्सेप्ट कर लेगा. आफ्टर दैट इट विल ओपन layer 3 header and it will check that what is destination IP. Destination IP is what? 1.1.1.1. so it will look up its routing table to forward traffic toward 1.1.1. बट इसकी राउटिंग टेबल में कोई रूट है 1.1.1 तक जाने का, तो पैकेट यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा. नाउ व्हाट वी विल डू, क्या करेंगे इसके लिए? सी, there is a default route pointed toward ISP, a static default route toward ISP on edge router. Show IP route. See, we will redistribute this default route into EIGRP. EIGRP में इसको क्या करवा देंगे हम लोग? रीडिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे. देखो, राउटर EIGRP 100 में जाओगे और रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक. और जैसे आप रीडिस्ट्रीब्यूट करवाओगे, नाउ दीज राउटर विल स्टार्ट टू रिसीव ए डिफॉल्ट रूट R1 as well as R2. These both router are receiving a default route. Okay, तो अब वो पैकेट किसकी तरफ फॉरवर्ड कर देगा? एज राउटर की तरफ फॉरवर्ड कर देगा ना. ऐसे ही होगा कुछ. समझ में आ रही है बात? नाउ ऑन एज राउटर व्हाट वी विल कॉन्फ़िगर? पैड कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ना. एज राउटर पे हम लोग हमेशा क्या कॉन्फ़िगर करते हैं? पैड. देखो, जब आप लोग अपने इनसाइड नेटवर्क से, अपने प्राइवेट नेटवर्क से इंटरनेट को कम्युनिकेट करना होता है आपके LAN यूजर्स ने, तो नेट का कौन सा टाइप कॉन्फ़िगर करेंगे? पैड. और जब आपने आउटसाइड नेटवर्क से अपने इनसाइड नेटवर्क को कम्युनिकेट करना है, अपने प्राइवेट नेटवर्क को कम्युनिकेट करना है, तो हम लोग कौन सा नेट कॉन्फ़िगर करेंगे? स्टैटिक नेट. डिस्कस करेंगे नेट को हम लोग अच्छे से. देखो, दो तरह की चीजें, दो रिक्वायरमेंट होती है. एक तो है हमारा जो सर्वर है, ये 1.1.1.1 क्या है? सर्वर है. जो सर्वर है वो कहां पे पड़ा है? वो इंटरनेट पे है. एंड योर प्राइवेट नेटवर्क वांट टू कम्युनिकेट टू दिस सर्वर. आपने प्राइवेट से पब्लिक में क्या करना है? किसी को कम्युनिकेट करना है. तो यहां पे हम लोग नेट का कौन सा टाइप कॉन्फ़िगर करेंगे? पैड. समझ में आ रही है बात? जैसे आप लोग यहां से इंटरनेट जो एक्सेस कर रहे हो, एक्चुअली वो क्या एक्सेस कर रहे हो? वेब सर्वर ही तो एक्सेस कर रहे हो. तो आप यहां से इस वेब सर्वर को ही तो एक्सेस कर रहे हो. तो
तो आप कौन सा नेट कॉन्फ़िगर करोगे? पैट। अब ऐसा भी तो हो सकता है आपका एक सर्वर यहां पे पड़ा है प्राइवेट नेटवर्क में, सर्वर इज इन प्राइवेट नेटवर्क एंड यू वांट टू एक्सेस दिस सर्वर फ्रॉम द इंटरनेट। इंटरनेट से आपने क्या करना है? इस सर्वर को क्या करना है? एक्सेस करना है। इन दिस केस वी विल कॉन्फ़िगर स्टैटिक नेट। समझ में आ रही है बात? समझ में आया? जो आपका सर्वर है, सर्वर कहां पे? इंटरनेट पे है, उस पे एक पब्लिक आईपी है। कौन सा आईपी है? पब्लिक आईपी है। और आप एक प्राइवेट नेटवर्क में हो, आपने इस सर्वर को कम्युनिकेट करना है, तो कौन सा टाइप का नेट रहेगा? पैट। ओके। और अगर आपके पास में यहां पे एक सर्वर अटैच्ड है आपके प्राइवेट नेटवर्क में, ये सर्वर है आपका एक प्राइवेट नेटवर्क में है, एंड यू वांट टू कम्युनिकेट टू दिस सर्वर फ्रॉम इंटरनेट, देन वी विल कॉन्फ़िगर स्टैटिक नेट। याद रहेगा? अभी फिलहाल हम लोग यहां पे कौन सा टाइप का नेट कॉन्फ़िगर करने वाले हैं? पैट कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। हमारे प्राइवेट नेटवर्क में हमारा सर्वर पड़ा है, कोई एग्जांपल जैसे कोई कंपनी का कोई सर्वर किया, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा नेटवर्क बुल्स है, ठीक है। नेटवर्क बुल्स ने अपना एक वेब सर्वर रखा हुआ है और उस वेब सर्वर पे आईपी कौन सा है? और नेटवर्क बुल्स का जो नेटवर्क है वो कौन सा नेटवर्क है? प्राइवेट नेटवर्क है। एंड यू वांट टू एक्सेस दिस योर वेब सर्वर फ्रॉम द इंटरनेट, हाउ यू कैन कम्युनिकेट दिस वेब सर्वर? प्राइवेट आईपी को तो आप बाहर से एक्सेस कर ही नहीं सकते ना। क्यों नहीं एक्सेस कर सकते? बिकॉज देयर इज नो इंफॉर्मेशन ऑफ प्राइवेट नेटवर्क इनसाइड द राउटिंग टेबल ऑफ आईएसपी राउटर। ये जो प्राइवेट आईपी की इंफॉर्मेशन इसके राउटिंग टेबल में होगी नहीं, तो आप बाहर से एक्सेस कर ही नहीं पाओगे। आऊंगा मैं स्टैटिक नेट के ऊपर, ठीक है। हाँ, और एक और केस बता देता हूँ। जैसे हमारे लोग हमारे यहाँ पे नेटवर्क बुल्स में रैक है ना, रैक रखे हुए हैं, और इन रैक पे आईपी जो है वो कौन से हैं? लाइक फॉर एग्जांपल प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं, और इन रैक को इंटरनेट के थ्रू क्या किया जा सकता है? एक्सेस किया जा सकता है ना। नॉर्मली एक्सेस नहीं कर पाओगे, आपको कौन सा नेट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा? स्टैटिक नेट। कौन सा नेट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा? बात करेंगे हम लोग नेट के बारे में, डिटेल से डिस्कस करेंगे नेट को, कहां पे कैसे रिक्वायर होता है। अभी हम लोग यहाँ पे कौन सा टाइप का नेट कॉन्फ़िगर करने वाले हैं? पैट कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। इस एज राउटर पे आपको क्या करना पड़ेगा? पैट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है। अभी टाइम बचेगा नहीं मैं स्टैटिक नेट तुम लोगों को कवर करवा पाऊं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टैटिक नेट एंड स्टैटिक पैट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको पता चल जाएगा, सिनेरियो बना के बता दूंगा एक, ठीक है। अब देखो, अब हमें यहाँ पे नेट की रिक्वायर्ड पैट क्यों कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा? पहले तो मुझे रिक्वायरमेंट बताओ, क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों कॉन्फ़िगर करेंगे हम लोग पैट? देखो, मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को, आईएसपी के यहाँ पे राउटर्स पे क्या लगी होती है? एसीएल्स लगी होती हैं। और यहाँ पे सिर्फ कौन से आईपी परमिट होते हैं? जो आईएसपी हमें यहाँ पे क्या करता है? प्रोवाइड करवाता है। और यहाँ पे आईएसपी ने हमें कौन सा आईपी प्रोवाइड करवाया? 15.1.1.1। तो इस आईपी को यहाँ पे क्या करा होता है? परमिट करा होता है। और बाकी इम्प्लीसिट सारे क्या हो जाते हैं? ऑटोमेटिकली डिनाई हो जाते हैं, है ना। नॉर्मली ऐसा ही रहेगा। और इस लैन यूजर ने जब इस 1.1.1 को कम्युनिकेट करना है, तो सोर्स आईपी क्या रहेगा? 192.168.1.10। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस विल बी 1.1.1.1। लेयर 2 पे सोर्स मैक एड्रेस क्या रहेगा? लैन का। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या रहेगा? डिफॉल्ट गेटवे का। मैं मैक एड्रेस मान के चल रहा हूँ, इसका मैक एड्रेस क्या है? 0A 0B, इसका 0C, ठीक है, 0D 0E 0F 1A। ये तो सीरियल इंटरफेसेस है हमारे, ठीक है। ये इनके मैक एड्रेसेस मान के चल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जब अब ये ट्रैफिक किसकी तरफ भेज देगा? ये वर्चुअल गेटवे का मैक एड्रेस अटैच करेगा ना। ये क्या अटैच करेगा? 0.0। ये पैकेट, ये फ्रेम किसके पास में आएगा? R1 के पास में। ये लेयर 2 हेडर ओपन करेगा ना। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज व्हाट? इट्स ऑन
वो वर्चुअल मैक एड्रेस इसकी आर्क टेबल में होगा ना ये, तो एक्सेप्ट करेगा इसको और फिर ये ओपन करेगा लेयर 3 हेडर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इज व्हाट 1.1.1. सो राउटर विल लुक अप इट्स राउटिंग टेबल. 1.1.1 को डेटा भेजना है तो इस बार इसके पास में डिफॉल्ट रूट है ना, तो ट्रैफिक किसकी तरफ भेज देगा 10.2 की तरफ, है ना. और किस इंटरफेस से पैकेट एग्जिट करेगा, इस इंटरफेस से पैकेट क्या करेगा एग्जिट. तो इस इंटरफेस से पैकेट जब एग्जिट करेगा तो इस पैकेट के अंदर क्या होगी, कुछ मॉडिफिकेशन, पता है ना क्या क्या मॉडिफिकेशन होगी. देखो राउटर ने क्या किया था, अपना राउटिंग टेबल लुकअप किया था, इसने देखा था डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इज 1.1.1.1. सो राउटर विल लुकअप इट्स राउटिंग टेबल एंड इट विल चेक दैट टू फॉरवर्ड ट्रैफिक डॉट 1.1.1 what is the exit interface. Exit interface क्या है, this is your exit interface. So it will transmit this packet from this interface. इस इंटरफेस से ट्रांसमिट करेगा, बट ट्रांसमिट करने से पहले वो क्या करता है उस पैकेट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन. यहाँ पे हमारे डिवाइसेस में ना एक पैकेट रीराइटर रहता है. क्या रहता है, एक पता है ना, पैकेट रीराइटर. इंटरफेस से पैकेट एग्जिट करने से पहले ये पैकेट किसको हैंडओवर करेगा, इस राउटर में एक पैकेट रीराइटर रहता है, पैकेट रीराइटर को हैंडओवर करेगा. नाउ पैकेट रीराइटर विल डिक्रीमेंट इन टीटीएल वैल्यू. फॉर एग्जांपल यहां पे इसने आईपी हेडर में क्या लगा के भेजा था, एक टीटीएल वैल्यू लगा के भेजी थी, कितनी 128. तो यहां पे वो टीटीएल वैल्यू कितनी कर देगा, डिक्रीमेंट बाय 1, कितनी कर देगा 127. and it will modify the layer 2 addresses, MAC addresses. So source MAC address will be what, exit interface MAC address, and destination MAC address will be what, MAC address of this gateway. ये gateway है ना, तो MAC address किसका अटैच करेगा 0F का, और ये पैकेट किसके पास में आ जाएगा, एज राउटर के पास में. तो ये क्या कर लेगा, जैसी फ्रेम आएगा वो लेयर 2 हेडर ओपन करेगा, लेयर 2 पे क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा. आफ्टर दैट इट विल ओपन लेयर 3 हेडर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इज व्हाट 1.1.1.1. सो इट विल लुकअप इट्स राउटिंग टेबल. तो राउटिंग टेबल जब लुकअप करेगा 1.1.1 को डेटा भेजना है तो इसमें मैच हो जाएगा. सो इट विल फॉरवर्ड ट्रैफिक टूवर्ड 15.1.1.2. इस इंटरफेस से पैकेट क्या करेगा, एग्जिट. तो पैकेट जब एग्जिट करेगा तो टीटीएल में क्या कर देगा, डिक्रीमेंट. और यहां पे लेयर 2 हेडर में कोई इंफॉर्मेशन ऐड होगी, लिंक कौन सा है, सीरियल लिंक. वो नॉर्मली एक एसडीएलसी का हेडर अटैच कर देता था, याद है ना, और इस पैकेट को क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा टूवर्ड आईएसपी. और जैसे ही आईएसपी के पास में यहाँ पे पैकेट आएगा, ये आईएसपी क्या करेगा, वो देखेगा सोर्स आईपी एड्रेस क्या लग के आ रहा है 192.168. देखो यहाँ पे एसीएल लगी हुई है, कौन सी एसीएल लगी हुई है, स्टैंडर्ड एसीएल लगी हुई है. और जो स्टैंडर्ड एसीएल होती है उसका जो फिल्टरिंग क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, सोर्स आईपी एड्रेस. वो सोर्स आईपी एड्रेस को क्या करता है, फिल्टर करता है. सोर्स आईपी एड्रेस इज व्हाट 192.168.1.10. और इस इंटरफेस पे एक ही आईपी परमिट है 15.1.1.1 सोर्स आईपी. बाकी जितने भी आईपी उसको क्या कर देगा, डिनाई. तो पैकेट यहीं पे क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, पैकेट आगे जाएगा ही नहीं. तो अब क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, हाँ अभी हमें रिक्वायरमेंट किस चीज की रहेगी, पैट की. सो व्हाट वी विल कॉन्फ़िगर पैट ऑन विच राउटर, ऑन एज राउटर. एज राउटर पे हम लोग यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, पैट कॉन्फ़िगर करने वाले हैं. समझ में आ रही है बात, अरे नेट बोल दो, नेट. पैट तो क्या है, नेट का टाइप है ना एक. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल कॉन्फ़िगर नेट. नेट का कौन सा टाइप, पैट. अब नेट जब हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं ना, डिफाइन, इनसाइड and outside interface. So these interfaces will be our inside interface.
एंड दिस इंटरफेस विल बी अवर आउटसाइड इंटरफेस, जो किससे कनेक्टेड होगा, ISP से कनेक्टेड होगा। वो इंटरफेस क्या रहेगा हमारा, आउटसाइड इंटरफेस। ओके, स्टेप नंबर 2, डिफाइन इंटरेस्टिंग ट्रैफिक। इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन करेंगे। टू विच you want to convert into public IP। पहले अपना इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन करेंगे कि किस ट्रैफिक को, किस आईपी को आपने पब्लिक में क्या करना है, ट्रांसलेट करवाना है। ठीक है, तो ये दो चीजें हम लोग डिफाइन करेंगे पहले। तो मैं एक काम करता हूं, एज राउटर पे चलते हैं पहले हम लोग। देखो, इंटरफेस ईथरनेट 2x0 विल बी IP नेट इनसाइड, ओके, एंड इंटरफेस ईथरनेट 2x1 इज IP नेट इनसाइड, एग्जिट इंटरफेस सीरियल 1x0 इज IP नेट आउटसाइड। ये पहले बताना पड़ेगा। अब एक और चीज, अब हमने कौन से प्राइवेट आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट करवाना है, हमारा इंटरेस्टिंग ट्रैफिक है जिसको हमने ट्रांसलेट करवाना है पब्लिक आईपी में। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल डिफाइन आवर इंटरेस्टिंग ट्रैफिक, मतलब किस सोर्स आईपी एड्रेस को हमने ट्रांसलेट करवाना है पब्लिक में। सो आवर इंटरेस्टिंग ट्रैफिक विल बी व्हाट, टू डिफाइन योर इंटरेस्टिंग ट्रैफिक वी विल ऑलवेज यूज एक्सेस लिस्ट। So access list is 10 and say permit 192.168.1.0. So this is our interesting traffic, जिसको हमने क्या करना है, ट्रांसलेट करवाना है, किस में, पब्लिक में। ये हो गया हमारा इंटरेस्टिंग ट्रैफिक। जिस सोर्स आईपी एड्रेस को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। नाउ व्हाट वी विल से, IP net inside source, जो लिस्ट किस में हो, 10 में हो, उसको ट्रांसलेट कर दे किस में, इंटरफेस सीरियल 1x0 के आईपी में। और आगे आप एक ओवरलोड कीवर्ड यूज करोगे। ओवरलोड कीवर्ड यूज करते ही क्या होगा, ये नॉर्मली डायनामिक नेट होता है, ये पैट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस कमांड का मतलब समझेंगे अभी हम लोग। इस कमांड का क्या मतलब है, देखो, ये नेट करेगा किसको, आईपी पैकेट्स को। आईपी पैकेट को क्या करेगा, नेट करेगा, मतलब ट्रांसलेट करेगा। जब पैकेट किस इंटरफेस पे रिसीव होगा, इनसाइड इंटरफेस पे। जब पैकेट किस इंटरफेस पे आएगा, इनसाइड इंटरफेस पे क्या होगा, रिसीव होगा। और जो सोर्स क्या होगा, जो लिस्ट 10 में होगा। और लिस्ट 10 में क्या है, 192.168.1.0/24 के कोई भी आईपी हो आपको मिलेगा, उसको क्या करेगा, वो ट्रांसलेट करेगा। देखो ये क्या कर रहा है, नेट कर रहा है आईपी पैकेट को। जब पैकेट इनसाइड इंटरफेस पे क्या होगा, रिसीव होगा। और जो सोर्स किस में हो हमारा, जो लिस्ट 10 में हो, लिस्ट 10 में यही है। और किस में ट्रांसलेट कर दे, जो इस इंटरफेस का जो आईपी है उसमें ट्रांसलेट कर दे, 15.1.1.1 में ट्रांसलेट कर दे। ओवरलोड मीन्स ये सोर्स आईपी एड्रेस को तो ट्रांसलेट करेगा ही करेगा, सोर्स पोर्ट को भी क्या करेगा, ये ट्रांसलेट करेगा। देखो ये
आईपी पैकेट को क्या करने वाला है, नेट करने वाला है। जब पैकेट इनसाइड इंटरफेस पे आएगा, और जब सोर्स क्या होगा, कौन से एड्रेस को ट्रांसलेट करेगा, जब इस इनसाइड इंटरफेस पे आएगा, और जब कौन से आईपी को, सोर्स आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट करेगा, और कौन से सोर्स आईपी को जो लिस्ट 10 में है उसको ट्रांसलेट करेगा, और किस आईपी में, किस पब्लिक आईपी में, इंटरफेस सीरियल 1/0 के पब्लिक आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करेगा। एंड ओवरलोड मींस इट विल ट्रांसलेट सोर्स पोर्ट नंबर एज वेल। समझ में आ रही है बात? कमांड का मतलब पता चला, कमांड का क्या मतलब है। अब देखो यार क्या होगा, अब पैकेट फ्लो के बारे में डिस्कस करेंगे, पैकेट फ्लो हमारा कैसा रहेगा। उससे पहले मैं इस आईएसपी राउटर पे ना डीएनएस की सर्विस भी मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूं। आई एम गोइंग टू कॉन्फ़िगर डीएनएस सर्विस ऑन आईएसपी राउटर। आईपी DNS server. When you will configure this command, this ISP router will become DNS server, and this DNS server can convert name to IP. तो अब यहां पे आपको रिकॉर्ड डालने पड़ते हैं ना, IP host name is let's suppose www.google.com, इसका आईपी क्या है 1.1.1.1। ये मैंने एक रिकॉर्ड डाल दिया, ये मेरा डीएनएस सर्वर है, और इस डीएनएस सर्वर पे मैंने एक रिकॉर्ड डाला कि जब भी तुमसे नेम रेजुलेशन के लिए पूछे www.google.com, तो उसका आईपी, तो उसको किस आईपी में कन्वर्ट कर देना, 1.1.1.1। मैंने इस आईपी को क्या दे दिया, एक नेम, क्या, www.google.com। समझ में आ रही है बात? अब बात करेंगे पैकेट फ्लो क्या रहेगा। मैं काम करता हूं, मैं अपने लैपटॉप को ना एक और काम करता हूं, मैं इस आईएसपी राउटर पे ना, आईएसपी राउटर पे HTTP की सर्विस भी इनेबल कर रहा हूं, और इस राउटर को हम लोग HTTP सर्वर के थ्रू भी एक्सेस करके देखेंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू भी आप कोई भी राउटर को एक्सेस कर सकते हैं, उसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। तो आज तक हम लोग राउटर को कैसे कॉन्फ़िगर करते आए थे, या फिर कंसोल पोर्ट के थ्रू और टेलनेट के थ्रू कॉन्फ़िगर करते आए थे ना। बट आज हम लोग देखेंगे एक राउटर को इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो वो भी साथ में कवर हो जाएगा। तो मैं इस पे HTTP की सर्विस इनेबल कर रहा हूं, IP HTTP सर्वर, IP HTTP server. Now anyone can access this ISP router with using HTTP. HTTP से आप एक्सेस कर सकते हो इस राउटर को आप, ठीक है। बट जब भी कोई इस ISP राउटर को एक्सेस करे HTTP से, तो एक यूजर नेम और पासवर्ड भी तो मांगना चाहिए, अदरवाइज कोई भी उसको क्या कर लेगा, एक्सेस कर लेगा। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट ए यूजर नेम that is Cisco and I'm going to give privilege 15 privilege क्यों दोगे आप? अरे ट्रिपल ए के बारे में सुना है ना, थोड़ा बहुत पढ़ाया नहीं तुम लोगों को? नहीं सर। आईपी सर्विसेज में था ना? नहीं सर। इंटेंसिव बैच में, इंटेंसिव बैच वालों को तो पढ़ाया होगा। नहीं सर, GFC में पढ़ाया। चलो, प्रिविलेज से क्या मतलब है? देखो, अलग अलग प्रिविलेजेस होते हैं, मैं बताऊंगा तुम लोगों को कौन कौन से प्रिविलेजेस होते हैं। ट्रिपल ए के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी प्रिविलेज के बारे में ये समझो, लाइक आप लोग अपने लैपटॉप में यूजर बनाते हो, एक तो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर होता है, वो आपके लैपटॉप में कुछ भी चेंजेस कर सकता है। एक नॉर्मल स्टैंडर्ड यूजर होता है, वो इतने ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकता। समझ में आ रही है बात?
जैसे तुम्हारा एक रूट यूजर होता है और एक नॉर्मल यूजर होता है ना। तो जिसको प्रिविलेज लेवल क्या मिला है 15, वो इस राउटर पे कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है, उसको पूरा एक्सेस मिलेगा, फुल एक्सेस। प्रिविलेज लेवल 15 मींस आई एम गोइंग टू क्रिएट ए यूजर सिस्को विद प्रिविलेज level 15 means this user can access all the services on this router, or you can say it can change anything on this router, it can configure any services on this router, कुछ भी कॉन्फ़िगर कर सकता है, कोई भी सर्विस कॉन्फ़िगर कर सकता है। कौन सा यूजर? सिस्को यूजर, ठीक है, जिसको प्रिविलेज लेवल क्या दिया हुआ है 15, ठीक है। एंड पासवर्ड इज व्हाट? सिस्को 1 2 3, ये मैंने पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर दिया इस पे, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू इनेबल, सी, जब भी कोई इस आईएसपी को एचटीटीपी के थ्रू एक्सेस करे, जब भी कोई राउटर, जब भी कोई यूजर इसको एचटीटीपी के थ्रू एक्सेस करे, ऑथेंटिकेशन के लिए क्या मांगे वो? यूजर नेम एंड पासवर्ड। So I am going to apply this username and password on this HTTP service. So you will say IP HTTP authentication local. ये पासवर्ड वहां पे क्या हो जाएगा? अप्लाई हो जाएगा। एक कमांड चलाते हो ना तुम लोग, लाइन VTY पे जाके एक पासवर्ड कमांड चलाते हो, पासवर्ड देते हो, लॉगिन कमांड चलाते हो, वो पासवर्ड उस पे क्या हो जाता है? अप्लाई हो जाता है। या फिर आप कमांड चलाते हो लॉगिन लोकल कमांड चलाते हो, तो लोकल यूजर नेम पासवर्ड है वहां पे क्या हो जाता है? अप्लाई हो जाता है। तो वैसे ही मैंने HTTP के लिए वो पासवर्ड यहाँ पे क्या कर दिए? लोकल डेटाबेस का जो यूजर नेम पासवर्ड है वो मैंने HTTP सर्विस के लिए क्या कर दिए? अप्लाई कर दिया। समझ में आ गई बात? तो ओके, अब एक काम कर लेते हैं। अब क्या होगा, जब भी कोई इसको www.google.com को एक्सेस करना चाहता है ना, तो क्या होगा, पैकेट फ्लो क्या रहेगा वो बात करते हैं। You are on this LAN user and you have opened Internet Explorer and you are saying www.google.com। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे ना इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाके, ये आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर में एड्रेस बार में जैसे ही टाइप करोगे, आप एंटर प्रेस करोगे ना, एंटर प्रेस करते ही ये मशीन पहले क्या करेगी? एक DNS क्वेरी भेजेगा। ये क्या भेजेगा? एक DNS क्वेरी। तो एक DNS क्वेरी मैसेज जनरेट करेगा। इन दिस DNS क्वेरी मैसेज टाइप इज व्हाट? क्वेरी। ये पैकेट भी कैप्चर करके मैं आप लोगों को दिखा दूंगा सब कुछ, ठीक है। और क्वेरी में क्या रहेगा? www.google.com। इसका उसको क्या चाहिए? IP चाहिए उसका ना। नॉर्मली क्या होता है, हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा होता है दो मशीन्स के ऊपर, वो किसके ऊपर हो रहा होता है? IP बेस्ड कम्युनिकेशन होता है या नेम बेस्ड कम्युनिकेशन होता है? IP बेस्ड कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। अब इसने कोई भी डेटा भेजना है उसको google.com को, तो google.com का डेस्टिनेशन IP तो लगाना पड़ेगा ना पैकेट में। एक पैकेट इनकैप्सुलेट करेगा एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेस विल बी व्हाट? 8.8.8.8 है ना। डेस्टिनेशन IP तो सेट करना पड़ेगा, पैकेट में नेम नहीं होता, डेस्टिनेशन IP सेट करना पड़ता है। तो इसने जब भी वेबसाइट एक्सेस करनी है तो उस वेबसाइट का क्या चाहिए होगा? पैकेट इनकैप्सुलेट करने के लिए उसका IP एड्रेस चाहिए होगा ना। तो ये नेम रेजुलेशन के लिए क्या जनरेट करेगा? एक DNS क्वेरी। और इस DNS क्वेरी जो है वो लेयर 4 को हैंडओवर करेगा ये, और लेयर 4 पे किसको? UDP को। किसको? UDP प्रोटोकॉल को। एंड UDP प्रोटोकॉल विल ऐड ए UDP हेडर। सोर्स पोर्ट नंबर विल बी व्हाट? रैंडम पोर्ट नंबर। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर इज व्हाट? 53। DNS क्वेरी है ना ये, तो DNS सर्वर क्या यूज करता है? पोर्ट नंबर 53 है ना। नाउ ऑन लेयर 3 हेडर, सोर्स IP एड्रेस विल बी व्हाट?
192.168. Let's suppose its IP is 11. इसका IP क्या मिला हुआ है इसको? 1.11. And destination IP address will be what? अब इसको देखो, इसको क्या क्या, इसको एक तो IP मिला हुआ है 1.11. Gateway is what? 1.100. And DNS server is what? 8.8.8.8. So destination IP address is what? ये क्वेरी किसके लिए भेज रहा है? DNS सर्वर के पास में ना, तो वो क्या होगा? 8.8.8.8. Now source MAC address will be what? Its own MAC address. Let's suppose 0A, 0B, 0C and 0D. So source MAC address will be what? 0A. Its virtual MAC IP का MAC address क्या है? 00. Destination MAC address will be what? 000. Virtual, अरे किसका MAC address अटैच करेगा? गेटवे का ना, गेटवे का MAC address यही है ना, वर्चुअल MAC address. ये पैकेट किसके पास में आएगा? R1 इसमें मॉडिफिकेशन करेगा, है ना? अरे वो पता है ना अब सारी चीजें, या मैं मॉडिफाई करूं ये सारी चीजें. जैसे ही पैकेट इसके पास में आएगा, वो पैकेट इस इंटरफेस से क्या करेगा? एग्जिट करेगा. तो वो क्या करेगा इसमें? मॉडिफिकेशन TTL वैल्यू में लेयर 3 हेडर में डिक्रीमेंट कर देगा. TTL वैल्यू कितनी कर देगा? 127. सोर्स मैक एड्रेस विल बी, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस विल बी 0D, है ना? और पैकेट किसके पास में आ जाएगा? एज राउटर के पास में. नाउ एज राउटर विल चेक दैट व्हाट इज डेस्टिनेशन. पहले लेयर 2 हेडर ओपन करेगा. डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज its own MAC address, so it will accept that frame on layer 2. After that it will open layer 3 header. Destination IP address is what? 8.8.8.8. Now as router will look up its routing table, और इसकी routing table में क्या पड़ा होगा? एक default route toward ISP. तो ISP को फॉरवर्ड करेगा ना पैकेट, बट ISP को पैकेट फॉरवर्ड करने से पहले इसके अंदर क्या करेगा? वो मॉडिफिकेशन. अब यहां पे क्या कॉन्फ़िगर्ड है? पैड कॉन्फ़िगर्ड है ना. अब पैड क्या करेगा? इस पैकेट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करेगा. देखो इस इंटरफेस को हमने क्या बोला हुआ है? Inside. And this interface is what? Outside interface. This is our inside and this is our outside interface. देखो, और हमारी स्टेटमेंट क्या थी? वो नेट की स्टेटमेंट, डू शो रन पाइप सेक्शन IP नेट. ये स्टेटमेंट थी ना. हमने क्या बोला हुआ था? ये IP पैकेट को क्या करेगा? नेट करेगा. जब कौन से इंटरफेस पे आएगा? पैकेट इनसाइड इंटरफेस पे रिसीव होगा. इनसाइड इंटरफेस पे रिसीव है, कौन सा IP एड्रेस ट्रांसलेट करेगा? सोर्स IP एड्रेस. और सोर्स IP एड्रेस कौन सा? जो लिस्ट 10 में हो. तो ये जो सोर्स IP उस लिस्ट 10 में आ रहा है ना, अरे एक्सेस लिस्ट 10 में आ रहा है, तो सोर्स IP एड्रेस क्या कर देगा? ट्रांसलेट. और किस IP में ट्रांसलेट कर देगा? सीरियल 1/0 के IP में. तो यहां पे क्या कर देगा? इसको ट्रांसलेट करके इसको कर देगा ये 15.1.1.1. एंड एक और कीवर्ड दिया हुआ हमने क्या? ओवरलोड. तो ये क्या करेगा? सोर्स पोर्ट नंबर भी क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा. लेट्स सपोज सोर्स पोर्ट नंबर इसने ट्रांसलेट कर दिया, 4000 में ट्रांसलेट कर दिया. इट विल कन्वर्ट सोर्स IP एड्रेस एज वेल एज सोर्स पोर्ट नंबर, दोनों में ट्रांसलेट, दोनों को ट्रांसलेट करेगा. इसको इसमें ट्रांसलेट कर दिया. और ये अपने पास में ना एक ट्रांसलेशन टेबल बनाएगा. क्या बनाएगा अपने पास में? ट्रांसलेशन टेबल. नेट ट्रांसलेशन टेबल बोलते हैं जिसको. तो इसमें क्या था? एक IP आया था सोर्स क्या 11, इसको किस में ट्रांसलेट कर दिया इसने? 15.1.1.1 में
और जो सोर्स पोर्ट नंबर क्या लग के आया था 1024, इसको किसमें ट्रांसलेट कर दिया था इसमें। तो इस तरह से अपने पास में क्या बनाएगा, एक ट्रांसलेशन टेबल बनाएगा। समझ में आ गई बात। और ये पैकेट किसको भेज देगा अब, आईएसपी को। और जैसे आईएसपी को भेजेगा, अब आईएसपी देखेगा सोर्स आईपी क्या लग के आ रहा है 15.1.1.1 और 15.1.1.1 इस इंटरफेस पे क्या है, परमिट। नाउ राउटर विल चेक दैट व्हाट इज डेस्टिनेशन आईपी 8.8.8.8 और इस आईएसपी की राउटिंग टेबल में 8.8.8 तक जाने का रूट पड़ा होगा। ये किसको भेज देगा, डीएनएस सर्वर की तरफ। और डीएनएस सर्वर के पास में जैसे ये पैकेट रिसीव होगा, डीएनएस सर्वर क्या चेक करेगा, डेस्टिनेशन आईपी किसका है, मेरा है, एक्सेप्ट कर लेगा। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है 53, मतलब इस पे डीएनएस की जो सर्विस वर्क कर रही होगी उसको हैंडओवर कर देगा। आफ्टर दैट इट विल ओपन दिस डीएनएस क्वेरी मैसेज। और डीएनएस क्वेरी मैसेज में इसको क्या मिलेगा, एक क्वेरी आ रही है किसके लिए, www.google.com के लिए। और इस डीएनएस सर्वर पे एक एंट्री पड़ी होगी ना, google.com का आईपी क्या है 1.1.1.1। नाउ दिस डीएनएस सर्वर विल गिव द रिप्लाई रिस्पॉन्स। तो अब ये क्या देगा, डीएनएस रिस्पॉन्स देगा, रिप्लाई देगा। किसका रिप्लाई, www.google.com का आईपी क्या है उसका 1.1.1.1। एक डीएनएस रिप्लाई मैसेज जनरेट करेगा। नाउ सोर्स पोर्ट नंबर विल बी व्हाट, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर विल बी नाउ 4000। सोर्स आईपी एड्रेस विल बी, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस विल बी 15.1.1.1। एक पैकेट इनकैप्सुलेट हो जाएगा और ये पैकेट किसकी तरफ भेज देगा, वापस से एज राउटर के पास में। जैसे ही अब इस एज राउटर पे पैकेट रिसीव होगा ना, पैकेट रिसीव होते ही अब देखो, अब इस बार पैकेट इनसाइड इंटरफेस पे हिट कर रहा है या आउटसाइड इंटरफेस पे हिट कर रहा है, आउटसाइड इंटरफेस पे। देखो जब पैकेट रिसीव होगा इनसाइड इंटरफेस पे, तब तो सोर्स आईपी एड्रेस ट्रांसलेट होगा। और जब पैकेट हिट करेगा कौन से इंटरफेस पे, आउटसाइड इंटरफेस पे, तो डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा, ट्रांसलेट होगा। नाउ इट विल ट्रांसलेट डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है 15.1.1.1 है ना, तो कौन सी टेबल से ट्रांसलेट करेगा ये, इस ट्रांसलेशन टेबल से। तो उसको किस में ट्रांसलेट कर देगा 15.1.1.1 को 192.168.1.11 आईपी में। और ये साथ में क्या करेगा, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर भी क्या करेगा, ये लग के आ रहा है ना पोर्ट नंबर, उसको किस में ट्रांसलेट कर देगा 1024 में। और ये पैकेट अब किसकी तरफ भेज देगा, ऐसे इसी तरह से पैकेट किसकी तरफ चला जाएगा, इस लैन यूजर की तरफ चला जाएगा और नेम रेजुलेशन हो जाएगा तुम्हारा। नेम रेजुलेशन हो गया, अब इसको आईपी मिल गया उसका। और अब ये क्या कर लेगा, अब वेबसाइट एक्सेस करने के लिए पैकेट फ्लो क्या रहेगा, अब ये नेम रेजुलेशन हुआ है, ये अभी इसको सिर्फ अभी क्या पता चला है आईपी। और ये क्या एक्सेस कर रहा था, वेबसाइट। इसने क्या टाइप किया था www.google.com। तो ये क्या जनरेट करेगा, अब एक इसने google.com के लिए रिक्वेस्ट करी थी ना, गूगल के लिए क्या करी थी, एक रिक्वेस्ट मैसेज आता है तुम्हारा, लेयर 4 को हैंड ओवर करेगा। सोर्स पोर्ट नंबर विल बी एनी रैंडम पोर्ट नंबर एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर विल बी 80। सोर्स आईपी एड्रेस विल बी व्हाट 1.11 एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस विल बी व्हाट। उसने रिस्पॉन्स में 1.1.1 ही दिया था ना, तो 1.1.1.1 सोर्स मैक एड्रेस अपना और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस वही गेटवे वगैरह का। पैकेट आएगा किसके पास में, पैट के पास में। और ये क्या करेगा, इस पैकेट में कौन से इंटरफेस पे पैकेट रिसीव हुआ है, इनसाइड पे। तो आईपी एड्रेस कौन सा ट्रांसलेट होगा, सोर्स आईपी एड्रेस। तो सोर्स आईपी एड्रेस क्या कर देगा, एंड इट विल ट्रांसलेट सोर्स पोर्ट नंबर। लेट्स सपोज इसने ट्रांसलेट कर दिया इसमें
समझ में आ गई बात। अब पैकेट जाएगा आगे, सोर्स आईपी यहाँ पे क्या होगा, परमिट, और ऐसे ये क्या करेगा, रिप्लाई करेगा और वापस से वो ट्रांसलेशन टेबल चेक करके क्या कर देगा, उसको वापस से अननेट कर देगा ना। समझ में आ रही है बात। एक काम करते हैं, इसका पैकेट फ्लो देखते हैं, समझ में आएगा अभी अच्छे से। और इससे पहले ना मैं एक काम करता हूँ, मैं इस लैन यूजर को ना अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं इसको डिसेबल कर रहा हूँ। एक मिनट, एक काम करता हूँ, मैं वाईफाई से ही कनेक्ट करता हूँ, और वाईफाई को कहीं और से आईपी ना मिल जाए, मैं इसलिए वाईफाई को मैनुअली आईपी दे दूंगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? अरे वैसे तो डीएचसीपी से आईपी मिलना चाहिए, मैं क्या कॉन्फ़िगर करूंगा, इसको मैनुअली एक आईपी कॉन्फ़िगर करूंगा। एक्चुअली ये नहीं तो किससे उठा लेगा, ये एक्सेस पॉइंट से उठा लेगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। नहीं तो मैं इसको मैनुअली आईपी दे देता हूँ। एंड आई एम गोइंग टू कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस, लेट्स सपोज 192.168.1.11. Subnet mask will be, sorry, default gateway will be, and DNS server IP address will be 8.8.8.8. IP address कॉन्फ़िगर कर दिया मैंने किसको, अपने लैपटॉप को मैंने क्या कर दिया, अरे ये किससे कनेक्टेड है, मेरे वायरलेस लैन कार्ड पे कनेक्टेड है। तो अभी मेरी मशीन को जो आईपी दिया ना, वो समझ लो इसको आईपी मिला है। तो अब मैं अपनी मशीन पे चलता हूँ, मैं पिंग करके देखता हूँ पहले किसको, 1.1.1 को। कम्युनिकेशन होना चाहिए, वेट करो। अरे ये डिस्कनेक्ट हो गया, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। मैं काम कर लेता हूँ यार, मैं अपना उसी से कनेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैं डिसेबल कर रहा हूँ, और ये देखो इसको एक आईपी मिलेगा डीएचसीपी सर्वर से, वेट करो। ये लैन कार्ड किससे कनेक्टेड है, अच्छा इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी हटाओ इसको, ये नोड लेके आओ यहाँ पे, नोड लेके आया मैं यहाँ पे, और इसको डबल क्लिक करो। यहाँ पे लैन कार्ड दिखा रहा है सिर्फ, कौन सा, ठीक है। और मैं ये जो केबल अटैच करूंगा अभी किससे अटैच होगी, मेरे लैपटॉप के लैन कार्ड से कनेक्ट होगी। और लैपटॉप पे जो आईपी मिला है वो चेक कर लेते हैं। डीएचसीपी से आईपी मिलना चाहिए, वेट करो। आईपी मिल गया होना चाहिए, नहीं मिला है अभी तक। मिल गया, आईपी मिल चुका है ना। देखो इसको आईपी भी मिला है, लैपटॉप को सबनेट मास्क भी मिला है, और वही देख लो आपको गेटवे क्या मिला है, और कौन से डीएचसीपी सर्वर से आईपी मिला है, विजिबल है क्या, है ना। जो R2 से मिला है उसको साथ में डीएनएस सर्वर का भी आईपी मिला है, मिल गया आईपी। अब एक काम करते हैं, अब मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करता हूं, और यहां पे जाके मैं टाइप करता हूं www.google.com। ये नेम रेजुलेशन के लिए एक रिक्वेस्ट भेजेगा, और डीएनएस सर्वर जो है वो नेम रेजुलेशन करवाएगा, और नेम रेजुलेशन में आईपी किसका प्रोवाइड करवाएगा, 1.1.1.1 का। और फिर ये उसके लिए क्या भेज देगा, एक एचटीटीपी की रिक्वेस्ट भेजेगा ना, और इस पे एचटीटीपी की सर्विस क्या है, इनेबल्ड है। वो राउटर यहाँ पे टेलनेट के थ्रू एक्सेस हो जाए, एचटीटीपी के थ्रू एक्सेस हो जाएगा, वेट करो। www.google.com, वो राउटर एक्सेस होगा, वेट करो। यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहे हैं, यूजर नेम पासवर्ड किसका मांग रहा है, आईएसपी का। जो राउटर है उस पे एचटीटीपी की सर्विस क्या है, इनेबल्ड है।
तो उस पे एक मैंने बोला था यूजर नेम और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के लिए बोले, तो सिस्को पासवर्ड क्या था, सिस्को 123, और जैसे आप ओके बोलोगे ऑथेंटिकेशन के लिए रिक्वेस्ट जाएगी। और ना इसमें बहुत सारे पैकेट ड्रॉप हो रहे होंगे, एक्चुअली मेरे लैन कार्ड में ना दिक्कत है, 2-3 बार रिफ्रेश मारना पड़ेगा, अभी वो राउटर एक्सेस हो जाएगा, यहाँ पे एक्सेस हो चुका है वो राउटर। ISP राउटर ही था ना हमारा, वो उसका होस्ट नेम दिखा रहा है, ये वो राउटर एक्सेस हो चुका है आपके पास में, और नेम से एक्सेस कर पा रहे हैं, देख लो हम लोग इसको। और यहां से हम लोग इस पूरे राउटर को कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं, ISP राउटर को कॉन्फ़िगर करके दिखाऊं। देखो यहाँ पे मॉनिटर द राउटर एक ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करोगे, मैंने जैसे मॉनिटर द राउटर पे क्लिक किया, अब देखो यहाँ पे होम पे जाना है, एग्जैक्ट मोड में जाना है या कॉन्फ़िगर मोड में जाना है, राउटर के कॉन्फ़िगर मोड में चलते हैं। कॉन्फ़िगर पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा कॉन्फ़िगर मोड ओपन हो जाएगा। ये थोड़े पैकेट इसमें बीच में ड्रॉप हो रहे हैं, थोड़ा टाइम ले रहा है, क्योंकि मेरे जो फिजिकल लैन कार्ड है मेरे लैपटॉप का, उसमें प्रॉब्लम है, वो डैमेज है एक्चुअली। ये कौन सा मोड आ गया, ये एग्जैक्ट मोड है, कॉन्फ़िगर मोड आया नहीं है, वेट करो, ये कॉन्फ़िगर मोड आ चुका है। अब मैं यहाँ पे चलो ISP राउटर पे कौन सा प्रोटोकॉल इनेबल करके दिखाना है वो बताऊं। देखो ISP राउटर जो है ना, शो IP प्रोटोकॉल कमांड चला रहा हूं, यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल इनेबल्ड है नहीं है ना, मेरे पास में उस राउटर का क्या है, एक्सेस है, किसके थ्रू, HTTP के थ्रू। मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूँ, राउटर EIGRP या राउटर रिप इनेबल कर दूं, वहां पे रिप, एंटर। चेक करें ISP राउटर पे शो IP, वो कमांड उसने ली नहीं है, राउटर रिप, क्या बोलना था, राउटर रिप कमांड चल चुकी है वहां पे, दिखा देता हूं मैं तुम्हें, नहीं चले, वेट करो। ये लो EIGRP चला दूं, राउटर EIGRP 100, पहले देखने दो वहां पे कोई प्रोटोकॉल चला तो नहीं, शो IP प्रोटोकॉल नहीं चला, एंटर करो। चेक करें, देखो ISP पे वो प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली क्या हो गया, EIGRP 100 चल गया वहां पे। अच्छा, उस पे कोई नेटवर्क एडवर्टाइज करवा के दिखाऊं, ये लो नेटवर्क कौन सा, उस पे एक 1.0.0.0 का नेटवर्क है ना, ये लो। ये थोड़ा लैन कार्ड में प्रॉब्लम है, नहीं तो इतना टाइम नहीं लेता, एक बार एंटर में वो पूरा कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। ये देखो ISP पे चलूं, यहाँ पे कोई कमांड चली हुई है नेटवर्क की, शो IP प्रोटोकॉल, देखना कोई भी आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, किसके थ्रू, आपके पास में कंप्लीटली ये राउटर क्या हो चुका है, एक्सेस हो चुका है। क्या कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, मैं होम पे जाता हूं वापस से, कोई भी टाइप की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको टेलनेट करने की भी जरूरत नहीं है, आप HTTP के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। एक और चीज दिखा देता हूं मैं तुम्हें, प्लेटफॉर्म पे क्लिक करता हूं मैं, प्लेटफॉर्म पे क्लिक किया, प्लेटफॉर्म में देखना आपके पास में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखा रहा है, जैसे शो प्रोसेस CPU, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो CPU का यूजेस दिखा देगा, CPU
कितना परसेंट यूटिलाइज हो रहा है तुम्हारा, पूरी इंफॉर्मेशन दिखाएगा सीपीयू की है। तो आप उस राउटर को क्या कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो आप। ये देखो यहां पे ये 5 मिनट पहले का दिखा रहा है, ये 1 मिनट पहले का दिखा रहा है, ये 5 सेकंड, सॉरी 5 सेकंड पहले जो सीपीयू यूटिलाइजेशन थी वो कितनी थी, 2% समथिंग दिखा रहा है ये। और ये दिखा रहा है 1 मिनट पहले का जो ये एवरेज दिखा रहा है, लास्ट 5 मिनट की, लास्ट 1 मिनट की एंड लास्ट 5 मिनट की एवरेज दिखा रहा है सीपीयू यूटिलाइजेशन की। 1% लास्ट 5 मिनट में एवरेज है इसकी सीपीयू यूटिलाइजेशन की, 1 मिनट में 2% थी, लास्ट 1 मिनट में जो एवरेज है उसका सीपीयू यूटिलाइजेशन का, और लास्ट 5 सेकंड के अंदर जो उसका एवरेज जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो कितना है, 2%। तो आप पूरा इसको मॉनिटर कर सकते हो। जैसे मैं शो मेमोरी फ्री पे क्लिक करता हूं तो इसकी मेमोरी बता देगा कितनी फ्री है कितनी नहीं फ्री है, सारी इंफॉर्मेशन दिखाएगा। शो बफर में इसकी बफर दिखा देगा वो, देखो यूज्ड फ्री बफर पे क्लिक करता हूं, शो इंटरफेस पे क्लिक करोगे इंटरफेसेस दिखा देगा। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ पे क्लिक करोगे वो वाली कमांड यहां पे रन हो जाएगी, सारे इंटरफेसेस शो करेगा। मैं दिखाऊं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो आप यहीं से उसको क्या कर सकते हो, राउटर को, ये देखो इसके इंटरफेसेस दिखा रहे हैं। एचटीटीपी के थ्रू आप कंप्लीटली इस पूरे राउटर, आप जो भी नॉर्मली जो कॉन्फ़िगरेशन करते हो आप टेलनेट के थ्रू, कंसोल के थ्रू, वो सारी की सारी आप कॉन्फ़िगरेशन किसके थ्रू कर सकते हो, एचटीटीपी के थ्रू आप कर सकते हो। वो डिस्क्रिप्शन कुछ भी डिफाइन कर दो, वो तो मैंने एम डिफाइन करी, शो इंटरफेस पे। ये लो शो इंटरफेस लूप बैक 1, देखता ही नहीं है ना ये बुक तो, ठीक है। तो पैकेट फ्लो जो है ना हमारा, उसको मैंने लिंक आपको कैप्चर करके दिखाने थे। और देखो मैं आपको एज राउटर पे दिखाता हूँ, अपनी ट्रांसलेशन टेबल भी बनाएगा, शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। तो ये आईपी एक रिक्वेस्ट लेके आया था और इसको इस आईपी में क्या कर दिया था, ट्रांसलेट कर दिया था इसने। और जो रिक्वेस्ट आई थी वो किसके लिए आई है, एचटीटीपी के लिए आई थी। समझ में आ रही है बात। और जो भी रैंडम पोर्ट नंबर लग के आया था उस रैंडम पोर्ट को किस में ट्रांसलेट कर दिया, इस पोर्ट नंबर में क्या कर दिया था इसने, ट्रांसलेट कर दिया था। एंट्री इसका यार एक स्पेसिफिक टाइम होता है, याद नहीं है मुझे, देख लेना। और ना एक और चीज दिखाता हूं, शो आईपी नेट स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या दिखाएगा ये आपको, आउटसाइड इंटरफेस अगर आपने चेक करने हैं और इनसाइड इंटरफेसेस अगर आपने चेक करने हैं तो इस कमांड से आप चेक कर सकते हैं, शो आईपी नेट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, पैकेट कैप्चर करके दिखाऊं, पैकेट फ्लो इसका जो हमने डिस्कस किया वही है, देखना है या नेक्स्ट क्लास में देखना है। नेक्स्ट क्लास में इसको ना एक एक इसके पैकेट हम लोग कैप्चर करके देखेंगे, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा, जो ट्रांसलेशन है इसकी पता चल जाएगी। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे स्टैटिक नेट के बारे में एंड स्टैटिक पैड के बारे में, ठीक है।